ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ بہرام تھا۔ اس کی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک تھا۔ ایک دن شاہ بہرام اپنے وزیروں کے ساتھ کسی سفارتی مقصد کے لیے پڑوسی ملک کی ریاست میں ایک عظیم الشان تقریب میں شریک ہونے گیا۔ یہ ریاست 7 پہاڑوں اور 7 دریاؤں کے اس پار واقع تھی جہاں کی شہزادی کا حسن مشہور تھا۔ شاہی دربار کی اس تقریب میں ہر طرف رنگوں اور خوشبوؤں کا راج تھا۔ ریشمی لباس پہنے لوگ، روشن فانوس اور دلکش موسیقی نے فضا کو جادوئی بنا دیا تھا۔ شاہ بہرام اپنے تخت پر براجمان تھا، لیکن اس کی نظریں بے چینی سے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس کی سلطنت میں کوئی بھی ایسی شہزادی نہ تھی جو اس کے دل کو موہ سکے۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے خوبصورت باغ میں پڑی جو دربار سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ وہاں ایک حسینہ چنبیلی کے پھولوں کو سونگھ رہی تھی۔ وہ تھی شہزادی گل بہار، جس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری جھیلوں کی سی چمک تھی۔ اس کے بال رات کی طرح سیاہ تھے جو اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے۔ شہزادی کے چہرے پر ایک ایسی معصومیت تھی جو شاہ بہرام کے دل کو چھو گئی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ چاہتا تھا، مگر اس شہزادی کے بغیر اس کا دل مکمل نہیں تھا۔ شاہ بہرام نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی گل بہار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہی دم لے گا۔ اس نے اپنے وزیر کو فوراً شہزادی کے والد شاہ زرین کے پاس شادی کا پیغام لے کر بھیجا، مگر شاہ زرین نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کر سکتے جو اس کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنا چاہے۔ یہ انکار شاہ بہرام کو شدید ناگوار گزرا۔ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی۔ وہ بادشاہ تھا جسے کبھی انکار کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ سیدھے راستے سے شہزادی کو نہیں پا سکتا تو کسی اور طریقے سے اسے حاصل کرے گا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے ایک عجیب و غریب اور پر اسرار فقیر کے بارے میں خبر دی جو اپنی کٹیا میں ایسی طاقت رکھتا تھا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایسے جنات تھے جو پلک جھپکتے ہی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے تھے۔ شاہ بہرام نے فقیر کو ڈھونڈ نکالا اور اس کی کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر ایک سادہ اور نورانی چہرے والا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک دائمی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد عجیب و غریب دھند چھائی ہوئی تھی۔ اے فقیر، بادشاہ نے غرور سے کہا، میں اس سلطنت کا شہنشاہ ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم کچھ ایسی طاقتوں کے مالک ہو جنہیں دنیا میں کوئی نہیں خرید سکتا۔ میں ان طاقتوں کا سودا کرنے آیا ہوں۔ فقیر نے اپنی گہری آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اے بادشاہ، یہ طاقتیں خریدنے کی چیز نہیں ہیں، یہ نیکی اور سچائی کی میراث ہیں۔ تم کس مقصد کے لیے ان طاقتوں کو خریدنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، مجھے ایک شہزادی چاہیے جو میری سلطنت سے 7ویں ریاست میں رہتی ہے۔ اس کا باپ اس کا رشتہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جنات اسے میرے قابو میں کر دیں۔ فقیر کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور غم آ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ بادشاہ کی نیت نیک نہیں ہے۔ اے بادشاہ، میں یہ سودا نہیں کر سکتا۔ میری طاقتیں کسی کی آزادی چھیننے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف بھلائی کے لیے ہیں۔ فقیر نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے فقیر، میں بادشاہ ہوں، تم مجھ سے سودا نہیں کر سکتے، مگر تمہیں یہ دینا پڑے گا۔ یہ سن کر فقیر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ جنات کا سودا نہیں کرے گا تو بادشاہ اس کی جان لے لے گا اور اس کی طاقتوں کو زبردستی چھین لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے قابو میں جنات زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اے بادشاہ، میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری صرف ایک شرط ہے، تم کبھی بھی ان جنات کو کسی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے جھوٹے وعدے کے ساتھ اس کی بات مان لی اور فقیر نے اپنے جنات کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ ان جنات میں سے ایک جن سب سے خوبصورت اور طاقتور تھا۔ اس کا نام ہورام تھا۔ اس کا رنگ چاندنی کی طرح سفید تھا اور اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ اے ہورام، بادشاہ نے حکم دیا، تم فوراً 7ویں ریاست جاؤ
और शहजादी गुलबहार को मेरे लिए ले आओ, लेकिन उसके आने से पहले इसे मेरे काबू में कर लो। हुराम ने बादशाह की बात सुन ली और एक पुल में हवा में गायब हो गया। वो सीधा 7वें रियासत में पहुंचा और शहजादी के महल के करीब इसी बाग में छुप गया। वो इंसानी रूप में था ताकि किसी को शक न हो। वो इंतजार करने लगा कि कब शहजादी गुलबहार दोबारा बाग में आए। कुछ देर बाद शहजादी गुलबहार इसी बाग में चहलकदमी करने आई। वो चंबीली के फूलों को सूंघ रही थी कि अचानक उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी जो एक आबशार के पास बैठा हुआ था। ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि हुराम था। शहजादी को ये देखकर हैरत हुई कि उसने उस खूबसूरत नौजवान को पहले कभी नहीं देखा था। हुराम ने शहजादी को देखा और फौरन उसके दिल में एक अनोखी मोहब्बत जाग उठी। उसने फैसला कर लिया कि वो शहजादी को बादशाह के हवाले कभी नहीं करेगा। हुराम ने शहजादी की तरफ कदम बढ़ाए। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और एक ऐसा गाना गाने लगा जो उसने उस लम्हे खुद ही बनाया था। उसकी आवाज में ऐसी जादुई कशिश थी कि शहजादी वहीं रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। शहजादी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे बाग में कैसे? मैं एक मुसाफिर हूं, हुराम ने धीमी आवाज में जवाब दिया। एक लंबे सफर के बाद थक कर यहां रुक गया था। तुम्हारे बाग की खूबसूरती ने मुझे रोक लिया। शहजादी मुस्कुरा दी। उसे उस अजनबी की सादगी और खूबसूरती ने हैरान कर दिया। उसके बाद शहजादी और हुराम की रोजाना बाग में मुलाकातें होने लगीं। वो दोनों घंटों बातें करते। शहजादी को हुराम की बातों में एक अजीब सी सच्चाई महसूस होती थी। हुराम इसे अपने सफर की कहानियां सुनाता और शहजादी उसे अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों के बारे में बताती। इन मुलाकातों के दौरान दोनों का ताल्लुक गहरा होता गया। हर रोज जब हुराम शहजादी से मिलने आता, वो उसके लिए कहीं दूर से एक अनोखा और नायाब फूल लाता जो उसके अपने जादू की ताकत से खुलता था। वो उसे बताता कि ये फूल सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए है। शहजादी का दिल इसकी इस सादगी और मोहब्बत को देखकर पिघलता गया। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था, वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। हुराम ने शहजादी की तरफ देखा और उसकी आंखों में गहरे जज्बात थे। गुलबहार, उसने नरम लहजे में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से मोहब्बत करूंगा, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। शहजादी गुलबहार ने हुराम के चेहरे पर देखा। उसके दिल में एक ही वक्त में खुशी और खौफ महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि हुराम ही वो शख्स है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं भी, इसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत का एहसास होने लगा है। शहजादी और हुराम की मोहब्बत की दास्तान अब पूरी तरह पनप चुकी थी। हुराम के लाए हुए फूलों से शहजादी का कमरा महकता था और उसके दिल में मोहब्बत की एक नई दुनिया आबाद हो चुकी थी। लेकिन हुराम के अंदर एक तूफान बरपा था। उसे हर वक्त ये डर सता रहा था कि वो एक जिन है और उसका मकसद बादशाह के हुक्म को पूरा करना था। वो अब शहजादी को कैसे बताता कि उसकी मोहब्बत एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। एक दिन जब वो दोनों हस्बे मामूल बाग में मुलाकात कर रहे थे, शहजादी ने हुराम से पूछा, तुमने मुझे कभी अपने सफर के बारे में तफसील से नहीं बताया। क्या तुमने कभी किसी को इतना प्यार किया है जितना तुम मुझसे करते हो? शहजादी के सवाल ने हुराम के दिल पर एक बोझ डाल दिया। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो शहजादी को सच बता दे। वो जानता था कि सच्चाई तल्ख होगी, लेकिन झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम नहीं रह सकता था। गुलबहार, हुराम ने धीमी और गमगीन आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। शहजादी ने उसे हैरत से देखा और हंस पड़ी। तुम बहुत मजाक करते हो। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? मैं सच कह रहा हूं, हुराम ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा। मुझे एक बादशाह ने तुम्हें काबू करने के लिए भेजा था। ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे बादशाह की बात माननी थी। लेकिन यहां आकर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। शहजादी का चेहरा फक हो गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हुराम से अपना हाथ छुड़ा लिया। तो तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मेरी मोहब्बत को अपने बादशाह के लिए इस्तेमाल किया। नहीं गुलबहार, हुराम ने इसको रोका। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी मोहब्बत सच्ची है।
मैं बादशाह को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मेरी नीयत बदल गई और मैं ये फैसला कर बैठा कि अब मैं बादशाह का हुक्म नहीं मानूंगा। शहजादी गल बहार के लिए ये एक बड़ा सदमा था। वो इस लम्हे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक तरफ उसका दिल होराम पर यकीन करने को तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अक्ल उसे रोक रही थी। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या तुम मुझे इस बादशाह से बचा सकते हो? मैंने इसीलिए तुम्हें सच बताया, होराम ने जवाब दिया। मैं तुम्हें इस बादशाह के हवाले नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। इस वक्त होराम को एक ख्याल आया कि वो शहजादी को बादशाह के खतरे से बचाने के लिए उसको अपने साथ ले जाएगा। होराम ने शहजादी से कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हें बादशाह के खतरे से बचा सकता हूं। शहजादी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर होराम की तरफ देखा। उसने होराम की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देखी। उसे यकीन हो गया कि वो जो कह रहा है वो सच है। हां, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, शहजादी ने जवाब दिया। होराम ने शहजादी का हाथ थामा और हवा में गायब हो गया। वो दोनों एक पल में शहजादी की सल्तनत से हजारों मील दूर एक खूबसूरत जंगल में पहुंच गए। शहजादी को जब ये एहसास हुआ तो उसने पहली बार होराम की असलियत को महसूस किया। होराम ने शहजादी को एक ऐसी जगह पर छुपाया जहां बादशाह की ताकत नहीं पहुंच सकती थी। अब होराम ने शहजादी को बचाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे मालूम था कि बादशाह इतना आसान नहीं हारेगा। वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब शाह बहराम ने कई दिनों तक होराम का इंतजार किया और वो वापस नहीं आया तो बादशाह का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने फौरन अपने जादूगरों और जासूसों को होराम और शहजादी गल बहार को ढूंढने का हुक्म दिया। जासूसों ने बादशाह को बताया कि शहजादी अचानक गायब हो गई है और उसकी कोई खबर नहीं है। ये सुनकर बादशाह का शक यकीन में बदल गया। उस जिन की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी हुक्म आदूली की। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं उसे और उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़े। बादशाह ने अपने सबसे ताकतवर जादूगर को बुलाया, जिसका नाम कहराम था। कहराम ने एक काला आईना निकाला और उसमें देखकर होराम और शहजादी का पता लगाने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद कहराम ने पता लगा लिया कि होराम ने शहजादी को एक ऐसे पुरस्रार जंगल में छुपाया है जहां आम इंसान तो किया, खुद जिन्नात भी आसानी से नहीं पहुंच सकते। कहराम ने बादशाह को बताया कि होराम अब बादशाह का साथ नहीं देगा और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और खुद कहराम के साथ उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान होराम और शहजादी गुल बहार इस जंगल में अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुके थे। होराम ने अपने जादू से शहजादी के लिए एक खूबसूरत छोटा सा घर बनाया था, जहां वो दोनों सुकून और मोहब्बत के साथ रह रहे थे। एक दिन होराम ने शहजादी को बताया कि बादशाह उनका पता लगा रहा है और वो जल्द ही यहां आ जाएगा। शहजादी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, अब क्या होगा? क्या बादशाह हमें पकड़ लेगा? मैं बादशाह से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, होराम ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले मुझे अपने मालिक के पास वापस जाना होगा और उसे सच्चाई बतानी होगी। होराम फौरन गायब हो गया और उस फकीर की कटिया में पहुंचा। फकीर ने जैसे ही होराम को देखा, वो समझ गया कि कोई गड़बड़ हुई है। ए होराम, तुम इतने परेशान क्यों हो? फकीर ने पूछा। ए मेरे मालिक, होराम ने कहा, इस बादशाह ने मेरे जरिए शहजादी की आज़ादी छीनना चाही, लेकिन मैं इसका हुक्म पूरा नहीं कर सका। मैंने इस शहजादी से मोहब्बत कर ली है। फकीर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने इस सौदे पर इतना जोर नहीं दिया। फकीर ने अपनी नूरानी आंखों से कहा, ए होराम, मोहब्बत ही असल ताकत है। लेकिन अब बादशाह हमें ढूंढ रहा है। होराम ने कहा, उसके पास कहराम है, वो हमें जरूर ढूंढ निकालेगा। डरने की कोई बात नहीं। फकीर ने कहा, मैं इस जंग में तुम्हारा साथ दूंगा। बादशाह कहराम के साथ उसी घने जंगल में पहुंचा जहां होराम और शहजादी गल बहार रह रहे थे। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, उनका सामना एक गैर मरी रुकावट से हुआ।
ये रुकावट और कोई नहीं बल्कि फकीर की रूहानी ताकत थी। ये कैसी रुकावट है? बादशाह ने गुस्से से पूछा। कहराम, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करके इसे तोड़ दो। कहराम ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन फकीर की रूहानी ताकत के सामने उसका जादू बेअसर हो गया। अचानक वहां फकीर नमूदार हुआ और बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। ए बादशाह, फकीर ने कहा, तुम अपने गुरूर की वजह से अपने आप को तबाह कर रहे हो। तुमने एक मासूम लड़की की आज़ादी छीनना चाही और उसके लिए तुमने मेरे जिन्नात को भी इस्तेमाल किया। बादशाह हंसा और कहने लगा, तुम एक सादा फकीर हो और तुम्हारी बातों में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे जिन्नात मेरे गुलाम हैं। इसी लम्हे हौराम भी वहां आ पहुंचा और उसने कहा, ए बादशाह, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। मैं एक जिन हूं और मुझे मेरे मालिक की नेकी और सच्चाई ने आजाद कर दिया है। बादशाह का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी तलवार निकाली। तुम सब मेरी हुक्म अदूली कर रहे हो, बादशाह ने ललकारा। कहराम ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और होराम पर एक आग का गोला फेंका। होराम ने अपनी आंखों में एक चमक पैदा की और वो आग का गोला इसी लम्हे गायब हो गया। होराम ने बादशाह पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि फकीर ने उसे हिदायत दी थी कि वो बादशाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ए बादशाह, होराम ने कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे गरूर की वजह से है। तुम एक बेगुनाह लड़की की आज़ादी नहीं छीन सकते। बादशाह को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपनी तलवार से फकीर पर हमला किया। लेकिन जैसे ही तलवारें फकीर के करीब पहुंची, वो हवा में रुक गई और उसके टुकड़े हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसी लम्हे शहजादी भी वहां आ गई और बादशाह को देखकर हैरान रह गई। शहजादी ने कहा, ए बादशाह, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। होराम एक अच्छा इंसान है और उसने मुझे आपसे बचाया है। बादशाह को ये देखकर हैरत हुई कि शहजादी, जिसके पीछे उसने इतनी मेहनत की, वो इस जिन के साथ खड़ी है। बादशाह का गुरूर और गुस्सा कम हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बादशाह ने फकीर और होराम से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और मैंने अपने गुरूर में आकर एक बेगुनाह लड़की की आज़ादी छीनना चाही। फकीर ने बादशाह को माफ कर दिया और होराम ने भी उसे माफ कर दिया। बादशाह ने होराम और शहजादी को उनकी मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी और वो खुद अपनी सल्तनत वापस चला गया। अब होराम और शहजादी ने उसी खूबसूरत जंगल में अपनी जिंदगी का आगाज किया और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। वो अपनी जिंदगी को सादगी और मोहब्बत के साथ गुजारने लगे। कहानी का अंजाम ये है, ताकत, गुरूर और लालच कभी भी मोहब्बत, नेकी और सच्चाई को नहीं हरा सकते। इंसान को हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ये ही असल ताकत है।